program. So we'll begin with the first example. How to accept input from the user. Different technologies, different way of input. So for C is concerned, no, we write something known as scanf. Okay, let me take this into the editor also. What I want to do is accept two numbers from the user and do the sum of it. From the beginning, develop a habit of visualizing the memory block. Okay, so here I have understood why I'm writing this line. Okay, I'm using header file because somewhere I'm using printf function. I'm declaring three variable A, B, C, which is of a type integer. I'm asking user to enter two number. How to accept? We write scanf. It is a part of the syntax. So for Java is concerned, we use scanner thing, scanner ka reference dot next int something. If it is .NET, we write some other way of taking input. Okay, read line रहता है .NET में. So different technology, different method to take a input. So for C is concerned, we have a method called scanf. तो ये scanf एक क्या है, फंक्शन कॉल ही है आपका. printf क्या है, फंक्शन कॉल, और उसका डेफिनेशन कहाँ पे है, हेडर फाइल के अंदर. So now here %d scanf के यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं लिखना है. n%a n%b. ऑब्जर्व n%a का मतलब क्या होता है, इसका कैसे विजुअलाइज करना है. आई एम गिविंग एम्प्टी मेमोरी बॉक्स टू द यूजर, यानी 2000. फिर आई एम जस्ट एज्यूमिंग सम एड्रेस, इट कैन बी डिफरेंट. फिर ये दो एम्प्टी बॉक्स आप यूजर को दे रहे हो और वो बॉक्स के अंदर डेटा डालेगा यूजर. आई एम एज्यूमिंग यूजर ने डाला है वैल्यू 2, बी में यूजर ने डाला वैल्यू 3, and C is equal to A plus B, and then you're printing the C. So you can understand this is the memory block get created. So let's execute this. So here what you have to visualize, my code will have 4 plus 4 plus 4. इतना memory block बनेगा अपना, वो size का code means when you run the application, this many memory block get created. You're accepting data. This is the plus operator to calculate. So addition होगा and you're printing it. Okay. For your better understanding, let me take it, and for initial time I'll draw the diagram so there's a lot of clarity. Ma'am, this memory block will be in stack or external memory? Stack. External में क्या क्या जाएगा, global variable, static variable, बाकी सब stack पे जाता है. Okay, and somewhere यहाँ पे heap भी लिखा था ना, तो heap में कब जाएगा, I'll just गाइड यू. हीप में कब जाएगा, जब आप malloc यूज करते हो. सी में देयर इज अ लाइब्रेरी फंक्शन कॉल्ड malloc. अगर ये लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके कब मेमोरी ब्लॉक बनाओगे तो हीप में जाता है. फॉर एग्जांपल जावा और .NET में हम लोग लिखते हैं न्यू समथिंग, न्यू माई क्लास समथिंग, तो जब न्यू लिखते हैं ना तब भी हीप में जाता है. तो malloc का इक्विवेलेंट आगे जाके न्यू कीवर्ड बन जाएगा. ओके, सी में malloc इज लाइक क्रिएटिंग मेमोरी ब्लॉक एट रन टाइम. तो malloc का मतलब है रन टाइम पे मेमोरी ब्लॉक बनाना है. ओके, एंड n% का मतलब है एड्रेस. लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड. लेट मी पुट इट ओवर हियर. इन दिस एग्जांपल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर आस्किंग यूजर टू एंटर टू नंबर. scanf से हम लोग डेटा ले रहे हैं और यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं. अब बोलोगे क्या प्रूफ है कि ये एड्रेस ही देगा. सो व्हाट आई एम डूइंग एट द एंड, आई एम प्रिंटिंग हियर. व्हाट आई कैन डू, आई विल कन्वर्ट दिस इनटू printf also. Control V. And here what I'm converting this is to printf. Everyone should be thorough with the memory diagram at least. Once it is clear memory diagram, it becomes much easier. So let's see, I'm running this code, build, rebuild solution. I'm running in this, you can very well run on the online compiler also. My code is already executing it. If you're missing the semicolon, इनिशियली यू मे गेट लॉट ऑफ एरर. देखो यहाँ पे एरर आया तो आपको रीड करना है. व्हाट इज सिंटैक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलन बिफोर आइडेंटिफायर printf. दिख रहा है, व्हिच मींस आई हैव मिस्ड आउट द सेमीकोलन. ये रेड अंडरलाइन आया उससे समझ में आता है एरर है कुछ. ओके, सो टर्मिनेट, ईच स्टेटमेंट हैज टू टर्मिनेट विद द सेमीकोलन. लेट्स रन दिस एग्जांपल. मैम ये गेट सीएस नीचे हमेशा रेड लाइन क्यों होता है? ये है ना C++ का कंपाइलर है ना, उसके अंदर C रन कर रहा है इसलिए वो दे रहा है. तो वो एक वार्निंग दे रहा है, अनडिफाइंड बोल रहा है, क्योंकि वो C++ में गेट CS नहीं होता, C में होता है सिर्फ. ओके, एंटर टू नंबर आपको दिख रहा है, एंटर टू नंबर, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है. एज्यूम आई एम एंटरिंग नंबर 2 एंड देन 3, आई एम एंटरिंग 2 नंबर, एंटर. अभी 3 + 2 क्या हो गया 5. तो ये फर्स्ट आउटपुट 5 है और ये जो बाकी का है ये क्या प्रिंट हो रहा है पता है,
एड्रेस, यानी n पर्सन A का एड्रेस आएगा और ये जो दूसरा वाला है वो B का एड्रेस है. Getting it? So address can be some random number. You don't know what is the actual number. So this is my address है और ये एड्रेस में आपने वैल्यू स्टोर किया है. ओके एड्रेस के भी तो प्रिंट करवा सकते थे वैल्यू. हाँ, बिना एड्रेसेस के बिना भी तो प्रिंट करवा सकते थे वैल्यू हाँ. ऑफ ए एंड बी. नहीं, ये तो आपको सिर्फ सिखा रही हूँ कि आप एड्रेस देख सकते हो क्या सी में. यस. हाँ, प्रिंट एफ किया ना तो आपको एड्रेस दिखता है. कोई स्टूडेंट बोलते हैं मैम आप बोल रहे हो n% मतलब एड्रेस है, क्या प्रूफ है कि वो एड्रेस है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू प्रूफ कि एड्रेस को Okay, भी ma'am. प्रिंट कर सकते हो. यस, because I can see in the group there are a lot of students who are doing the program for the first time. They don't know the basic things. So that is why I'm putting and giving the proof for each and every line. So there is no difficulty when you do your lab time. यस मैम. Okay. So comfort with this. Okay. Hello ma'am. Yes. Ma'am, why is it so कि जो एड्रेस रहता है वो इंटीजर में रहता है? सिर्फ इंटीजर नहीं, वो इंटीजर भी रहता है और अनसाइन इंटीजर रहता है. डेसिमल कैसे हो सकता है एड्रेस? नहीं मैम, हाँ सॉरी मैम, बट मैम sometimes it is seen कि when I mean when I was studying about assembly level language, it was some hex code like AX015HS something like that. So here it is integer, so it is a little bit confusing to me. नहीं, हैश कोड का मतलब देखो, हैशिंग एल्गोरिथम अलग होता है कुछ. Okay. Hash, like other programming language also has something known as hashing algorithm. Hash code मतलब जावा में भी रहेगा हैश कोड. यानी वो हैश कोड क्या होता है पता है? इट इज पॉइंटिंग टू मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी. Yes ma'am. और उसमें फिर एरे में डेटा स्टोर होता है, ऐसा कुछ होता है उसमें. ओके Okay. यहाँ पे तो एकदम बेसिक है, एक ब्लॉक और उसका एड्रेस, दैट्स ऑल. सी बहुत इजी है सच टू अंडरस्टैंड द मेमोरी डायग्राम बिकॉज इट वर्क डायरेक्टली ऑन द ओएस. इट इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड विद द ओएस, सो इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड. Okay. आगे टेक्नोलॉजी में यू वर्क इन द बलून, लाइक एनवायरमेंट में काम करोगे. Okay, so let's go ahead. What we have understood